Hello everyone. Today we are going to start our next topic, that is generations of computer. Evolution of computer technology is divided into 5 generations. First is first generation. The time period for the first generation is 1946 to 1959 and the technology used is vacuum tube. Second generation computers. The time period for the second generation computer is 1959 to 1965. The computers based on transistor. Next is third generation computer. The time period for the third generation computer is 1965 to 1971. The technology used in this type of computers is integrated circuit based. Next is fourth generation computer. The time period for the fourth generation computer is 1971 to 1980. The technology used in fourth generation computer is based on microprocessor. Next is fifth generation computer. The time period for the fifth generation computer is 1980 to present. The technology used in fifth generation computers are artificial intelligence based. Now we are going to explain first generation computers. Now some of the key points of first generation computers that is helpful for you for the preparation of competitive exam. First generation computers based on vacuum tube technology. As a main memory, magnetic drums and magnetic tapes are used in the first generation computer. Machine language is used. High power consumption and generate lot of heat of the first generation computer. जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे वो क्या करते थे, हाई पावर कंजप्शन होता था उसमें और वो बहुत ही ज़्यादा हीट जनरेट करते थे. जो उनकी स्पीड थी स्लो थी, साइज़ बहुत ज़्यादा लार्ज था. पंच कार्ड्स और पेपर टेप्स यूज़ किए जाते थे एज द इनपुट एंड द आउटपुट devices. Example for the first generation computers are ENIAC, UNIVAC 1, IBM 650, etc. Now some of the full forms. First is ENIAC. The full form of ENIAC is Electronic Numerical Integration and Computer. Now next is UNIVAC, Universal Automatic Computer. The full form of UNIVAC is Universal Automatic Computer. Next is IBM, International Business Machine. These full forms are also very useful and helpful for the preparation of the competitive exam. Now second generation computers. Second generation computers based on transistor. मेमोरी में हम यहाँ पे मैग्नेटिक कोर, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क यूज़ करते थे एज अ मेमोरी. असेंबली लैंग्वेज का हमने यूज़ किया. इसमें लो पावर कंजप्शन था एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. साइज़ में स्मॉल थे ये एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. जो इनकी स्पीड और रिलायबिलिटी थी उसमें इम्प्रूवमेंट था एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. पंच कार्ड्स, मैग्नेटिक टेप हम यूज़ करते थे इसमें एज अ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. तो क्या था, सेकेंड जनरेशन जो कंप्यूटर्स थे उस फर्स्ट जनरेशन में हम क्या यूज़ करते थे, मशीन लैंग्वेज. सेकेंड जनरेशन में हमने क्या यूज़ किया, असेंबली लैंग्वेज. उसमें हाई पावर कंजप्शन था. सेकेंड जनरेशन में क्या था, लो पावर कंजप्शन था. ये छोटे थे एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. इसकी स्पीड और रिलायबिलिटी में क्या था, इम्प्रूवमेंट था एज़ कम्पेयर टू द first generation computer. Example for the second generation of computers is IBM 1401, IBM 7090, UNIVAC 1107, etc. Now third generation computer. Third generation computers based on integrated circuit. इसमें हम लार्ज मैग्नेटिक कोर, मैग्नेटिक टेप, डिस्क यूज़ करते थे एज अ मेमोरी. यहाँ पर हमने हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि फोर्ट्रान, बेसिक, पास्कल, कोबॉल, सी एक्सेट्रा ये यूज़ करने शुरू कर दिए थे. एज़ कम्पेयर टू सेकेंड जनरेशन इनका साइज़ क्या था, और भी स्मॉल था. ये चीपर थे, ज़्यादा एफिशिएंट थे एज़ कम्पेयर टू द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर. स्पीड और रिलायबिलिटी में भी क्या आया था, इम्प्रूवमेंट आया था एज़ कम्पेयर टू द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर.
मैग्नेटिक टेप, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर हम ये यूज़ करते थे एज अ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। एग्जाम्पल क्या थे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के? IBM 360, IBM 370, PDP 11, UNIVAC 1108 एक्सेट्रा। नाउ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स थे वो बेस्ड थे ऑन द VLSI एंड माइक्रो प्रोसेसर। VLSI, द फुल फॉर्म ऑफ VLSI इज़ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। VLSI का मतलब क्या होता है? जब हम एक सिंगल माइक्रोचिप पे थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर अटैच करते हैं उसी को हम बोलते हैं VLSI। इसमें एज अ मेमोरी रैम और रोम को यूज़ किया जाता था। हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि पाइथन, सी शार्प, जावा, जावास्क्रिप्ट, रस्ट एक्सेट्रा, ये लैंग्वेजेस हमने इसमें यूज़ की। ये एज़ कम्पेयर टू थर्ड जनरेशन स्मॉलर थे साइज़ में, चीपर थे, ज़्यादा इफिशिएंट थे एज़ कम्पेयर टू द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। स्पीड, एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी की भी क्या थी? इसकी ज़्यादा इम्प्रूव थी एज़ कम्पेयर टू द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। इसमें हम कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, पॉइंटिंग डिवाइसेस, ऑप्टिकल स्कैनिंग एक्सेट्रा यूज किया हमने एज ए इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। एग्जाम्पल है इसका IBM PC, एप्पल मैसेंटॉस एक्सेट्रा। अब अभी हमने बताया कि हमने इसमें एज अ मेमोरी रैम और रोम यूज़ की थी। देन द फुल फॉर्म ऑफ रैम इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड द फुल फॉर्म ऑफ रोम इज़ रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी को ही हम प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं। नाउ लास्ट, और जो अभी हम जो जनरेशन के कंप्यूटर्स हम यूज़ कर रहे हैं डेट इज़ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, जो बेस्ड हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। इसमें हम यूज़ कर रहे हैं ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी एंड पैरेलल प्रोसेसिंग मेथड्स। नाउ ULSI क्या होता है? द फुल फॉर्म ऑफ ULSI इज़ अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ULSI का मतलब है जब हम एक सिंगल माइक्रोचिप पर मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर अटैच करते हैं, डेट इज़ ULSI। नेक्स्ट इज पैरेलल प्रोसेसिंग मेथड। पैरेलल प्रोसेसिंग मेथड क्या होता है? जिसमें हम 2 और मोर माइक्रो प्रोसेसर से एक साथ कोई भी टास्क परफॉर्म कराते हैं साइमल्टेनियसली, उसको बोला जाता है पैरेलल प्रोसेसिंग मेथड। जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है अंडरस्टैंड करते हैं नेचुरल लैंग्वेज, ह्यूमन लैंग्वेज को। इसमें जो पावर कंजप्शन है वो लो है, लेस हीट जनरेट करता है, स्पीड, एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, पोर्टेबल है, स्मॉल है साइज़ में, जैसे टच स्क्रीन, पेन, स्पीच इनपुट, लाइट स्कैनर, प्रिंटर, ये हम यूज़ करते हैं एज ए इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। एग्जाम्पल हैं इसके लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स जो हम आजकल यूज़ कर रहे हैं एक्सेट्रा। सो दीज आर द 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, दैट इज़ फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज होती थी वो क्या थी? वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड ट्रांजिस्टर बेस्ड, थर्ड इज इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड, फोर्थ इज माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड, और जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स हैं वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग।